Assalamu alaikum everyone. Question number 4, exercise 13B. The bar graph illustrates the results of a survey conducted on cars at a traffic junction. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग खड़े हुए हैं एक ट्रैफिक जंक्शन पे, या जिस तरह से जो टोल टैक्स वगैरह लेते हैं तो वो जो क्या करते हैं, रोकते हैं गाड़ियों को और देखते हैं। तो ये एक सर्वे है जिसमें उन्होंने देखा along the x-axis you can see we have number of people in each car, and along y-axis we have number of cars. हाउ टू रीड द ग्राफ ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है इनिशियल वीडियोस में कि वी हैव 20 against the first bar में we have 1. It means one person is there in the car, and we have 20 against the y-axis, that is 20 cars. So that means there are 20 cars having one person. 20 cars passed and we counted. There were 20 number of cars with only the driver in them, right? उसमें एक ही बंदा था यानी ड्राइवर था। इसके बाद we have the second bar, that is 2, and we have 25 against the y-axis. So that means there were 25 cars having 2 persons, there were 20 cars having 3 persons, there were 30 cars having 4 persons, and there were 25 cars having 5 persons. तो पहले तो ये ग्राफ आपने पढ़ लिया। अब आपको इससे एक आइडिया हो गया होगा टोटल नंबर ऑफ पीपल के लिए भी, और यहाँ पे जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स के लिए भी। टोटल नंबर ऑफ कार्स के लिए भी है वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ कार्स, तो आप यहाँ पे जाके देखोगे द फर्स्ट बार शोज 20, देन द सेकंड वन 25, थर्ड वन इज 20, फोर्थ वन इज 30, एंड फिफ्थ वन इज 25. सो वी विल ऐड ऑल दीज वैल्यूज, वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, total number of cars, 20 against the first bar, then we have 25, then we have 20, then we have 30, then we have 25. 25 is 50, 20 and 30 is 50, 50, 50, 100, 120, 120 cars. Done. Then we have the next one, that is find total number of people in all cars. सारी गाड़ियों में कितने लोग थे? तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 20 कार्स ऐसे हैं जिसमें एक ही बंदा था, 20 इंटू 1 20 पीपल। देन 25 कार्स में हमारे पास 2 लोग थे, सो 25 कार्स and 2 people, so 25 into 2, that is 50 people. Then we have 20 cars having 3 people, so 20 into 3, that is 60 people. सही, तो इसको इस तरीके से करके फाइंड आउट किया जाएगा। Total number of people in all cars, I have written it over here. Now how are we going to do that? We have 1 and we have 20 cars having 1 people, so we have 1 person, so we have 20 into 1. Then we have 25 cars having 2 people or 2 persons, so we have 25 into 2. Then we have the third bar, 20 against 3, so we have 20 cars having 3 people. Then we have 30 against 4, so there were 30 cars having 4 people, right? And then we have 25, then we have 25 against 5, so we have 25 cars, we have 25 cars against 5 people. We'll simply multiply and get the answer. So we have 20, we have 50, we have 60, we have 120, and we have 125. Now let's add these values. This is 70, 70 and 60 is 130, 130 and 120 is 250, 250 and 125 is 375. So we have 375 people, okay, in all the cars. This is done. Then we have the third one, that is express the number of cars with 4 or more people as a percentage. जैसे ही हमें पता चला कि percentage find out करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख लिया परसेंटेज, एंड यू नो कि परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100%, तो वो भी लिख लिया। अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कार्स विद 4 और मोर पीपल। ये हमारे पास 1% के लिए, ये 2, ये 3, तो हम तीनों बार्स को इग्नोर कर देंगे, हमें सिर्फ 4 और मोर पीपल को लेना है। तो ये 4 के लिए ये है एंड 5 के लिए ये वाला, लास्ट 2 बार्स को ले लेंगे। नंबर ऑफ कार्स विद 4 और मोर पीपल, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्स विद 4 पीपल? कार्स के लिए किस पे जाएंगे? वाई एक्सेस पे। हाउ मेनी कार्स विद 4 पर्सन? 4 पर्सन के लिए वी हैव 30, एंड देन वी हैव, और मोर के लिए हमारे पास 5 ही है, सो वी हैव against 5 we have 25. 25 were cars were having 5 people, तो यहाँ पे we have 25. ठीक है, तो हमने यहाँ पे किस तरह से लिखा? एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कार्स विद 4 और मोर पीपल। 4 लोगों के लिए 30 कार्स है, 5 लोगों वाली 25 कार्स है, वो लिख दी हमने। फिर एज अ परसेंटेज के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर लिया ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सर्वेड। फिर हमें टोटल नंबर ऑफ कार्स लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ कार्स हम ऑलरेडी जो है वो फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 120। तो ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, याद रखें ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो
हम ऊपर नीचे अभी कैंसिलेशन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कैंसिल दीज आउट। 30 को 120 से या 25 को 120 से हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। हम यहाँ कैंसिलेशन कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5s are 10, 2 6 are 12, ठीक है भाई। और यहाँ पे वी हैव 6, वी हैव 5। अब मजीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूमरेटर्स है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5s are 25, 2 कैरी 25 एंड 2 27, देन वी हैव 6। अब हम इसको क्या कर लेंगे, होल नंबर में करके लिख लेते हैं, 6 4s are 24, 3 left, 6 5s are 30, 5 is left, so this is your फाइनल आंसर, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं फोर्थ पार्ट में, इफ द इंफॉर्मेशन इज इलस्ट्रेटेड ऑन अ पाई चार्ट। ओहो भाई, अगर इसका पाई चार्ट बनाए तो फाइंड द एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो ये तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि पाई चार्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पाई चार्ट में हमारे पास क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे कार्स विद, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 1 पर्सन। एक बंदे के साथ कार होगी तो क्या होगा, फिर इसके बाद हम ले लेंगे 2 पर्सन, फिर ले लेंगे 3 persons, 4 persons, right? Then we have 5 persons, that is it। ये हमारे पास इस तरीके से करके हम टेबल बना लेते हैं। टेबल के फॉर्म में इसको सॉल्व करना क्या होगा, इजी होगा। चलिए जी, टेबल हमने रेडी कर ली। कार्स विद 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, 5 पर्सन। एंगल ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, हमेशा 360 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से 360 डिग्रीज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ उन्होंने कहा है फाइंड द एंगल ऑफ ईच सेक्टर। उन्होंने हमें इलस्ट्रेट करने के लिए नहीं कहा कि आप इसको पाई चार्ट पे इलस्ट्रेट करें। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, पीछे के फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर कंपोनेंट वैल्यू आती है और नीचे टोटल आता है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो हमें पहले ही पता है कि 120 है, तो हमने सब में लिख दिया 120। कंपोनेंट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हाउ मेनी कार्ड्स विद 1 पर्सन, एक बंदा जिसमें है वो कार्ड्स कितनी है, तो यहाँ पे 20 है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 पर्सन के लिए 20 कार्ड्स, 2 पर्सन हमारे पास 25 कार्ड्स। तो हम यहाँ पे वो वैल्यूज लिख देंगे बारी बारी। यहाँ पे पहले हमारे पास आ गया 20, देन 2 पर्सन वाली हमारे पास कितनी है, 25। फिर इसके बाद 3 पर्सन के लिए कितनी है, 20, 4 पर्सन के लिए कितनी है, 30, और 5 पर्सन के लिए कितनी है, 25। ये सारा वही डाटा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया था। अब यहाँ पे हम कैंसिलेशन कर लेते हैं। एज यू कैन सी कि ये सेम वैल्यूज हैं, तो ऑब्वियसली सब में सेम कैंसिलेशन होगी। 0 0 हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 12 1 12, 12 3 हर स्टेप में हमने सेम कैंसिलेशन कर ली। अब इसके बाद नाउ विल मल्टीप्लाई। 20 into 3 is 60 degrees, then 25 into 3 is 75 degrees, then again we have 20, that would be 60, then we have 3 into 3 9, 0 as it is 90 degree, then we have same 25 into 3 is 75। अब आप इन सब एंगल्स को अगर ऐड करोगे यू विल गेट 360 डिग्रीज। तो इट मीन्स कि आपने ये बिल्कुल सही फाइंड आउट किया। दैट इज़ द शॉर्टकट कि अगर आपके पास एंगल्स आपको लग रहा है कि पता नहीं सही है या नहीं, तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए। 60 60 इज़ 120, 120 एंड 90 इज़ 210, 75 एंड 75 इज़ 150, 150 एंड 210 इज़ 360। तो इट मीन्स कि आपने सही फाइंड आउट किया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव दिस पाई चार्ट, एज यू कैन सी इट ओवर हियर। इसके अंदर हमारे पास मेल स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा पोर्शन पाई चार्ट का ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसके बाद दिस पिंक पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय टीचर्स एंड देन वी हैव ऑरेंज पोर्शन फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। कह रहे हैं द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन अ स्कूल इफ देयर आर 5 times एज मेनी फीमेल स्टूडेंट्स एज टीचर्स इन द स्कूल। अब इन दोनों के हमारे पास एंगल्स तो नहीं है, लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप उन्होंने बता दिया है कि हमारे पास जो भी नंबर ऑफ टीचर्स हैं फीमेल स्टूडेंट्स उसका 5 टाइम्स है। फॉर एग्जांपल अगर टीचर्स हमारे पास 20 हैं तो 20 into 5 दैट इज फीमेल टीचर्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। सही। तो यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। बताएं कि हमारे पास जो है एंगल ऑफ सेक्टर क्या होगा टीचर्स के लिए। तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास आपने देखा था कि इस तरह से जो है वो मेल स्टूडेंट्स के लिए जो है हमारे पास गिवन है दैट इज 240,
और ये टीचर्स के लिए हमारे पास कोई भी एंगल गिवन नहीं है, और यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास कोई भी एंगल गिवन नहीं है। लेकिन हमारे पास इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे गिवन है कि ये हमारे पास जो है अगर 1 टाइम है तो ये 5 टाइम्स है। अब ये हमें फाइंड आउट करने हैं, दोनों ही नहीं पता। तो ये हमारे पास जो है अगर x है तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा। तो दैट इज़ द ओनली इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपको पता है कि दिस होल इज़ 360। तो अगर ये 360 है, 360 में से ये वाला तो जो है वो मेल स्टूडेंट्स के लिए हो गया। तो 360 में से जो है हम ये 240 को माइनस कर देते हैं, सो वी हैव 120। तो ये बाकी का इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो फीमेल स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स, फीमेल स्टूडेंट्स प्लस टीचर, ये जो है वो किससे शो किया जा रहा है, 120 से। तो हमारे पास फीमेल स्टूडेंट के लिए वी नो कि वो 5 टाइम्स है, तो 5x, और टीचर्स के लिए वी नो कि वो 1 टाइम है, दैट इज़ 1x, इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन हमारे पास 120 से शो हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से ऐड कर लेंगे। सो वी हैव 6x इज इक्वल टू 120। वेरिएबल और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो वी हैव x इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग टीचर्स। टीचर्स के लिए हमारे पास जो है एंगल ऑफ सेक्टर आ गया। अब वंस वी हैव दिस 20, तो इसका मतलब है कि हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 360 में से जो है वो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर दिस इज 240 एंड दिस इज 20, दैट इज 260। तो 360 माइनस 260 दैट वुड बी 100। तो हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स का भी आ गया कि 100 होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 5x है और टीचर्स के लिए x है, और मेल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 240 डिग्री, राइट। इन सबको ऐड करके किसके बराबर होगा, 360 डिग्री। तो आप ऐसे करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इज 5x 1x। जब ऐड करते हैं तो कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, वेरिएबल सेम रहता है हमारे पास। यहाँ पे वी हैव 120, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो वी हैव 20 डिग्री। सो आप ऐसे करें, वैसे करें, जैसे भी करें, ऑल्टरनेट तरीके से जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद वी हैव सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन द टीचर्स इन द स्कूल। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं देयर आर 45 टीचर्स इन द स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स। तो बताएं फीमेल स्टूडेंट्स कितने होंगे और मेल स्टूडेंट्स कितने होंगे। 45 टीचर्स उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। दे आर सेइंग इन सेकंड पार्ट देयर आर नंबर ऑफ टीचर्स, उन्होंने बताया देयर आर 45 टीचर्स, ठीक है। अब वो हमसे फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि पहले आप क्या करो, फाइंड आउट करो फीमेल स्टूडेंट्स को, और फिर बी पार्ट में कह रहे हैं मेल स्टूडेंट्स को। तो फीमेल स्टूडेंट्स तो हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स तो बहुत ही आसान है, कैसे करके फाइंड आउट किया जाएगा। हमें पता है कि टीचर्स और इनका रिलेशनशिप क्या है, ये 1 टाइम है तो ये 5 टाइम्स है। तो अगर हमारे पास यानी ये जो है हमारे पास x से रिप्रेजेंट हो रहा है और ये 5x है, तो ये इसका 5 टाइम्स है। तो अगर जैसे हमने कहा था कि टीचर्स अगर 20 है तो ये कितना होगा, 2 इंटू 5, 20 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। तो इसी तरह से अब ये पता चल गया कि नंबर ऑफ टीचर्स हमारे पास 45 है, तो हम इसको 45 को क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 22। सो हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद आ गई 225। अब हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेल स्टूडेंट्स। मेल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स कितना है। तो अब मेल स्टूडेंट्स को कैसे करके फाइंड आउट किया जाएगा। सही है, यहाँ पे मैंने दोबारा से पाई चार्ट को ड्रॉ कर लिया, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली है कि 240 यहाँ पे गिवन था, 20 हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया है, और इन दोनों को हमने ऐड करके 360 में से सब्ट्रैक्ट करके 100 हमारे पास आ गया। अब हमें मेल स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो अभी अभी आपने फीमेल स्टूडेंट्स को फाइंड आउट किया है, ठीक है, और टीचर्स हमारे पास जो है ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि 45 है। तो 45 जो टीचर्स है, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर यानी नंबर अगर टीचर्स की बात करें तो 45 है, और अगर इसके एंगल की बात करें कि हमारे पास टीचर्स के लिए नंबर तो 45 है और इसका एंगल कितना है, 45 का एंगल हमारे पास जो है कितना है, 20। अब अगर मेल स्टूडेंट्स की बात करें तो मेल स्टूडेंट्स का नंबर यानी तादाद हमें पता नहीं है, लेकिन इसका एंगल हमें पता है कि कितना है, 240। तो समझ तो आप गए होंगे। अब इसको हम इक्वेशन में चेंज कर देंगे। ये दोनों हमारे पास क्या है, तादाद, तो इनका रेशो ले लेते हैं। रेशो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास x रेशो 45 को हमने लिख दिया x/45। फिर ये हमारे पास दोनों एंगल्स हैं, सेम क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन हम रेशो में करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 240 डिग्री रेशो 20 डिग्री। तो ये हमने
इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब ये 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, ये हो गया 12। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, मेंटल मैथ से कर लेते हैं। 45 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 45 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 450। फिर 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई करना है, 45 45 इज 90, तो 450 प्लस 90 कर देंगे, दैट इज 540। इस तरह से शॉर्टकट में हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमें कुछ भी लिखना और मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। ये हमारे पास आ गए मेल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए। ठीक है भाई, इसके बाद हमारे पास क्या कह रहे हैं, इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं थर्ड पार्ट के अंदर, एज यू कैन सी कि इफ 2/3 ऑफ द टीचर्स आर women, कि हमारे पास अगर जो है 2/3 ऑफ द टीचर्स आर women, टीचर्स की तादाद हमें पता चल चुकी है, ऊपर उन्होंने बताई थी 45 टीचर्स हैं, तो उसमें से ज़ाहिर है कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। कह रहे हैं 2/3 ऑफ द टीचर्स आर women, अगर हम उसके 2/3 का मतलब है 3 में से, हर 3 में से 2, तो अगर हम 45 को डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 45 के 3 हिस्से हो जाएंगे, 15 15 15। फिर उसमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो विमेन है, तो यानी 15 इंटू 2 दैट इज 30। तो हमारे पास 30 जो है वो टीचर्स जो है वो विमेन है। कह रहे हैं एक्सप्रेस द नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स को एक्सप्रेस करें एज अ परसेंटेज, परसेंटेज के तौर पे। तो जैसे ही उन्होंने परसेंटेज का वर्ड यूज़ किया, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास है थर्ड पार्ट, तो हमने यहाँ पे लिख लिया थर्ड पार्ट, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई बाय 100%। और इसके बाद अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं एक्सप्रेस द नंबर ऑफ फीमेल्स, तो ये आ गया नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स एज अ परसेंटेज, परसेंटेज क्या आ गया 100% ऑफ द टोटल स्कूल पॉपुलेशन, तो यहाँ पे आ जाएगी टोटल स्कूल पॉपुलेशन बस। अब इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करना रह गया। अब नंबर ऑफ फीमेल्स हमारे पास नहीं है, मिस हमारे पास वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट किया था। जी बिल्कुल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमने की थी फीमेल स्टूडेंट्स, लेकिन वो सिर्फ नंबर ऑफ फीमेल्स थोड़ी हैं, फीमेल में दोनों आएंगे ना चंदा, फीमेल में हमारे पास स्टूडेंट्स भी आएंगे और टीचर्स भी आएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स तो है, जो हमने पीछे फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी थी 225, लेकिन हमारे पास जो है वो फीमेल टीचर्स नहीं है, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल टीचर्स हमें क्या करनी पड़ेंगी, फाइंड आउट करनी। 2/3 ऑफ द टीचर्स आर women, तो हमने यहाँ पे 2/3 ऑफ टीचर्स ले लेंगे। 2/3 ऑफ टीचर्स, टीचर्स कितने हैं, टीचर्स की जगह आ जाएगा 45, तो ये हमारे पास हो गया 30। तो यानी हमारे पास फीमेल टीचर्स की तादाद कितनी हो गई 30। तो ये टोटल फीमेल हो गई, यानी फीमेल स्टूडेंट्स भी और फीमेल टीचर्स भी। तब यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल की जगह हम क्या ले लेंगे, 225 प्लस 30, और टोटल स्कूल पॉपुलेशन, टोटल स्कूल पॉपुलेशन के लिए क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो है मेल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स और टीचर्स सबको ले लेंगे। मेल स्टूडेंट्स अभी अभी हमने बी पार्ट में किया था फाइंड आउट, दैट इज 540, और फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है 225, और टोटल टीचर्स हमारे पास कितनी है 45। तो ये सबको हमने ले लिया इस तरह से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100% एज इट इज। नंबर ऑफ फीमेल्स, इसमें दो चीज़ें आ गई, फीमेल स्टूडेंट्स और फीमेल टीचर्स। टोटल पॉपुलेशन में नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स। अब इसको ऐड कर लेते हैं, आपको पता है ये ऐड हो रहे हैं तो हम ऊपर नीचे भी कैंसिलेशन नहीं कर सकते। ये हो गया 255, और इनको भी ऐड कर लेते हैं, 540 है हमारे पास, एंड वी हैव 225 एंड 45। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 810। ठीक है भाई, 810 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ गया 100%। 0 0 क्या होगा सबसे पहले कैंसिल। इसके बाद हमारे पास 3 2 6, 3 7 21। यहाँ पे ज़ाहिर है ये ऑड नंबर है 81, एंड में 1 आ रहा है, और यहाँ पे 5 है, तो 5 के नंबर से तो नहीं होगा कैंसिल। ऑड नंबर हैं तो 2 से भी नहीं होंगे, तो फिर 3 से किया हमने ट्राई। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स, क्योंकि 8 + 1 इज 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 81 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 8s आर 40 24, देन वी हैव 3 5s आर 15। सही है भाई, तो हमारे पास इस तरीके से होल नंबर में करके जो है वो लिख लेते हैं, मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 27 इंटू 3 इज 81, then we have 4 0, and we have 1s are 27, so we have 13, तो इसको होल में लिख लेते हैं।
सो वी हैव दिस इज अवर रिमाइंडर, दिस इज क्वोशंट एंड दिस इज डिवाइजर। डिवाइजर हमेशा हमारे पास कहाँ रहता है, सेम पोजीशन पे रहता है। रिमाइंडर को ऊपर लिखा जाता है और क्वोशंट को यहाँ लिखा जाता है। इसी आंसर को अगर आप चाहें तो आप जो है वो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम।